Dear friends, today we are going to discuss the national income. The topic of national income is very important in IAS or in PCS or different state level exams, banking exams, and SSC. First of all, what does we mean about national income or what is national income? National income is the gross value of final goods and services produced within the domestic territory of any country in a financial year. To understand this national income, we have to give emphasis on certain words which are used in this definition, like gross value, final goods and services, domestic territory, financial year. We are discussing all of them one by one. First of all, what is gross value? Gross value is called the market value of anything. Now, market value, what does we mean about market value? There are two type of values. One is the production cost and second is the market cost. Production cost in economics, in the language of economics, production is cost is called the factor cost. It is the cost of manufacturing. And when factor cost, in the factor cost, we add the indirect taxes like GST and subsidies which are provided by the government like LPG subsidy or anything else. When we combine all these in the factor cost like indirect taxes and subsidies, that price should be converted in the gross value or market value. Now, second thing is final goods and services. What are final goods and services? Final goods and services are such type of goods and services which are ready for consumption, like plant and machinery. We are discussing some examples, like the clothes we are wearing, the items which we purchase from the market. Anything which we purchase from the market is called the final goods and services. First of all, we have also differentiate between the intermediate goods, primary goods, and the final goods. Primary goods are called the factors of production. They are called the raw materials. Intermediate goods are such type of goods which are including or which are very necessary in the production of final goods and services. And final goods and services are basically that type of items which are ready for consumption, which we purchase from the market. Now, third thing is called the domestic territory. What do you mean by the domestic territory? डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड द फिजिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री. जैसे भारत है तो पूरे भारत के लिए जो हमारा लैंड का एरिया है और 12 नॉटिकल माइल्स तक जो सी का एरिया है, दैट इज़ काउंटेड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इस फाइनल डोमेस्टिक टेरिटरी में वी कैनॉट इंक्लूड द एम्बेसीज ऑफ एनी कंट्री. नाउ द लास्ट थिंग इज द फाइनेंशियल ईयर. Financial year, it is the financial year of any government. In India, it is from 1st April to 31st March. Now, in the national income, we also have to give some emphasis on some things, that like national income is measured in monetary values. नेशनल इनकम को हमेशा हम मॉनेटरी वैल्यू, पैसे के रूप में मेजर करेंगे. जैसे मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. सेकेंड थिंग, द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ऑलवेज वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम ऑलवेज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इट डजंट काउंट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. नेशनल इनकम के केस में हम हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि उस साल में बनता है उसे हम प्रोड्यूस करेंगे और उसको हम काउंट करेंगे, न कि इंटरमीडिएट गुड्स को और जो पहले बनी चीज़ें हैं उसे. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मारुति इंडस्ट्रीज़ ने फाइनेंशियल ईयर 1920 में 1 लाख गाड़ियां बनाई और पिछले साल की 18-19 की फाइनेंशियल ईयर की उसकी मान लेते हैं कि 20,000 गाड़ियाँ बच गई. तो जब हम 19-20 का फाइनेंस नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो केवल हम 1 लाख गाड़ियों के वैल्यूज़ को ही काउंट करेंगे, उन 20,000 गाड़ियों के वैल्यूज़ को काउंट नहीं करेंगे.
एंड द थर्ड थिंग, द वैल्यू ऑफ ओल्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट काउंटेड। पुराने वस्तुओं के वैल्यूज़ को हम इसमें काउंट नहीं करते। नाउ नेशनल इनकम में हम देखेंगे कि 2015 में नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन इंडिया बाय सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके फॉर्मेशन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सीएसओ इस चीज़ को मेज़र करता है और सीएसओ ने 2015 से ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं। ड्रास्टिक चेंजेस इन द मीन्स कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स को इंडिया भी अब फॉलो करने लगा है और जनवरी 2015 से पहले जहां पे हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम मानते थे, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, वहीं पे अब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को नेशनल इनकम मानते हैं। मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश का जो उसका सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब आगे जब हम बात करते हैं तो नेशनल इनकम के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी डिफ्लेटर है। अब हम इन टर्म्स को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे। जब हम जीडीपी की चर्चा करते हैं तो अब ये सवाल उठता है कि जीडीपी क्या है, व्हाट इज जीडीपी? GDP is defined as it is the gross value of final goods and services produced within the domestic territory of any country by the citizens and the residents of that country. अब आप लोगों ने देखा होगा कि नेशनल इनकम के डेफिनेशन में और जीडीपी के डेफिनेशन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये भी ग्रॉस वैल्यू है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि उस देश में उसके सिटीजन्स और रेजिडेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। सिटीजन्स और रेजिडेंट्स की जब हम चर्चा करेंगे तो सिटीजन्स किसी भी देश के मूल निवासी होंगे और रेजिडेंट्स मान लें कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, जैसे एफडीआई वगैरह के लिए चलाने वाले कोई टेक्निकल्स वगैरह आते हैं, वो भी भारत सरकार के अंदर या भारत के टेरिटरी के फिजिकल बाउंड्री के अंदर रह के जो कुछ उत्पादित करेंगे, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी। अब यदि हम इसके इकोनॉमिकल कैलकुलेशन में जाएंगे तो जीडीपी इज काउंटेड एज जीडीपी इक्वल्स टू C + I + G + X - N। इसकी व्याख्या अब चूंकि फ़ोन पे बोल के नहीं हो सकती है, इसके लिए कागज़ कलम चाहिए तो हम बाद में देखेंगे। अब अगला टर्म इसमें आता है जीएनपी। जीएनपी को डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द सिटीजन्स एंड द रेजिडेंट्स। समझिएगा इसको। जीएनपी कुछ नहीं है, केवल जीडीपी का विस्तृत रूप है। जब हम जीएनपी की बात करेंगे तो जब हम जीडीपी में केवल और केवल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं तो वो जीएनपी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बहुत सारे भारतीय विदेशों में भी कार्यरत हैं और जब हम बाहर से आने वाले और बहुत सारे विदेशी भारत में भी कार्यरत हैं, तो जब हम विदेशी जो भारत में कार्यरत हैं उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ेंगे तो वो हमारा जीडीपी हो। साथ ही साथ जब हम जो भारतीय भारत के बाहर रह कर के कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा किए गए मॉनेटरी वैल्यू को जब हम जीडीपी में ऐड कर देंगे तो वो हमारा जीएनपी हो जाता है। ये जीडीपी का ही विस्तृत रूप है। और इसी में से एक टर्म आता है एनएनपी। जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी वस्तु के रखरखाव पे किया गया खर्चे को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड द वियर एंड टियर ऑफ गुड्स। तो वो जो हमारा जीएनपी है वो कन्वर्ट हो जाता है एनएनपी में, और वो एनएनपी जो है अभी वो मार्केट वैल्यू पे है, क्योंकि उसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सब सरकार द्वारा दिए गए सब्सिडीज़ ऐड किए जाते हैं। तो जब हम उन सभी चीज़ों को हटा देते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, इट इज़ कॉल्ड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो था 2015 से पहले हमारी राष्ट्रीय आय हुआ करती थी। दैट वाज कॉल्ड आवर नेशनल इनकम बिफोर 2015, एंड आफ्टर अडॉप्टिंग द measures or the values of international system of accounts from 1st January 2015, we called GDP at market price at our national income। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब एक छोटा सा टर्म और आता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। बहुत ही सिंपल है। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति की हम आय काउंट करते हैं। एक व्यक्ति की आय हम कैसे निकालेंगे? अब जैसे देखिए पूरे भारत की राष्ट्रीय आय और एक व्यक्ति की आय,
इसको हम कैसे काउंट करेंगे? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा कि जो कुल पॉपुलेशन है उनके द्वारा किया गया कार्य, मॉनेटरी वैल्यू, और जब हम एक की वैल्यू को निकालेंगे तो टोटल पॉपुलेशन को नेशनल इनकम से डिवाइड कर देंगे। व्हेन वी डिवाइड नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री वी गेट द पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर आता है। अब जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं, यहाँ पे वर्ड है डिफ्लेटर। डिफ्लेटर का मतलब होता है कि द एक्चुअल वैल्यू, इसका डेफिनेशन है, इट इज द मेजर ऑफ लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज कैलकुलेटेड टू फाइंड द ओवरऑल राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सीएसओ ने अपना बेस ईयर 2011 रखा है, और हम बराबर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ? यही मतलब हुआ कि जब हम 2011 से 2019-20 के सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी की तुलना करते हैं, इट इज़ बाय जीडीपी डिफ्लेटर, क्योंकि इसके लिए एक बेस ईयर को लिया जाता है और उस बेस ईयर में उस देश की जीडीपी को देखते हैं और उसके साथ साथ करंट ईयर के जीडीपी को मैच करके, दोनों को माइनस करके 100 से हम डिवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। अब इसके बाद नेशनल इनकम का लास्ट टॉपिक आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। ये पीसीएस वाले बच्चों के लिए वन लाइनर फैक्ट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान होगा, और बार बार बहुत जगहों पे पूछा भी जाता है। पहले तो यूपीएससी भी इस टाइप की क्वेश्चंस पूछा करती थी, लेकिन अब पीसीएस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि हु काउंटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फर्स्टली। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नारोजी इज द फर्स्ट पर्सन हु कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन द ईयर 1868। कहाँ पे कैलकुलेट किया था? उन्होंने एक वाइट पेपर निकाला था, दैट इज कॉल्ड द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट अ बुक, इट इज़ अ वाइट पेपर पब्लिश्ड बिहाइंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसमें ही कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वाज ₹20। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, फ्रेडरिक सिलास वगैरह भी आएंगे, उतना ज़्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा जाता है कि भारत में पहली बार हु कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया साइंटिफिकली। तो ध्यान रखना है, प्रोफेसर VKRV राव कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया साइंटिफिकली इन द ईयर 1931। इसके बाद बनाया जाएगा 1951 में नेशनल इनकम कमेटी। इसके हेड होते हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ही वॉज द मतलब ग्रेट इकोनॉमिस्ट इन इंडिया, पीसी महालनोबिस। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि मतलब नेहरू महालनोबिस मॉडल, भारत में बृहद औद्योगिकरण के ये जन्मदाता माने जाते हैं, और इन्हीं के जन्म पे हम स्टैटिस्टिकल डे भी मनाते हैं। तो बहुत बड़े मतलब ये अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने ही इसी नेशनल इनकम कमेटी को, जो कि 91 में बनी थी, भारत सरकार इसका नाम बदल के कर देती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। ये CSO आज भी कार्यरत है और नेशनल इनकम से संबंधित डाटा और भी बहुत सारे तरीके के काम ये करता है। इसी के साथ साथ इस टॉपिक का मैं एंड करता हूँ। आप बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और इससे संबंधित जो भी रिलेटेड आपके क्वेरीज होंगे ये बताने की कोशिश करिए। थैंक यू।